What inspired us is the fact that a person started playing cricket at the age of 36. In the last IPL only, I remember, people were crazy about booing him. Somebody out of the deathbed and he has played World Cup. He has won the World Cup. So आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इसी बारे में है. हाँ? मैं स्टार्ट करती हूँ. नहीं, मैं कर रहा हूँ. नहीं, मैं करती हूँ. Should be. नहीं. मजा फिर से स्टार्ट कर. अबे क्या बोल दी तूने? मैं स्टार्ट करूँ? नहीं, मैं करती हूँ. मैं करता हूँ. मैं करती हूँ. So hi everyone. Hello. My name is Janvi. And I am Aman. And we are back again with another discussion on our podcast. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है एक नई शुरुआत करने के बारे में, एक नई कोशिश करने के बारे में. So recently he told me about a movie that जो इन्होंने देखी, and the name of the movie is Jersey. And it's about cricket. Moreover, it's about a man at the age of 36 who restarted his cricket की career. And ऐसी एज में जब लोग रिटायर हो जाते हैं तब he was playing for selections in the national team. Yeah, right. तो ऐसे में आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी के लिए डेडिकेटेड है. It's about cricket, it's about motivation, it's about restarting anything that you like. And I think cricket से ज़्यादा अच्छा example, real life cricketer से ज़्यादा अच्छा example कोई हो नहीं सकता. People in India mostly who are going through this journey of an era where cricket, politics, Bollywood are the most covered part of our lives. Yeah. Are the most discussed part of our lives. Most powerful, most influential. Yes. Most of us follow them. Most of us follow the people there. So not just movie. We have gone through many examples, many real life examples in last few years where we have seen people, coming out of that place where nobody would have thought कि यार ये यहाँ पे उठ पाएगा. Rishabh Pant is a very great example. That's somebody out of the deathbed and he has played World Cup. He has won the World Cup. Yeah. And similarly, the most amazing person I want to discuss here is Hardik Pandya. Exactly. That person I have seen all of us have seen in the last 2 years. He has seen many things down on the field, off the field. He has gone through too much. In the last IPL only, I remember, people were crazy about booing him. On the fields, just they were chanting his names for the wrong reasons. Just because he was not able to, जिस तरह से set एक standard set है, उस तरह से नहीं कर पा रहे थे वो. He was in his learning journey. Even his loyalty was questioned. His personality towards other senior players was questioned. How he treats them. Yeah. And yes, I think at that point of time, he's a celebrity cricketer, so people have got all right in this democracy to discuss him. Yeah. But यार because they are in the public domain, so मतलब जनता कुछ भी कह सकती है. कहीं ना कहीं इंसान affect हो ही जाता है. और he was badly affected, but we have seen everything after that. We have seen him lifting the World Cup. Right. मैं एक चीज बताना चाहती हूँ. मतलब I have been into cricket from the past 1 year. मैं काफी ज्यादा एक्टिवली देख रही हूँ. बट उसके पहले अगर मैं एक जनरलाइज्ड व्यू दूं उन लोगों के तरह से जो एज जस्ट अ पब्लिक फिगर उसे एज अ क्रिकेटर नॉट मतलब ऑन फील्ड परफॉर्मेंस उसकी ट्रैक करते हैं, तो एज अ मतलब नॉन क्रिकेट फैन अगर मैं बात बोलूँ तो आई हैव नोन हिम. मतलब एक जैसे कॉफी विद करण में जो चीज हुई थी उनके साथ कुछ साल पहले, और फिर उसके बाद he has always been in the news for the bad reasons. बट जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया और देखा स्टोरी उनकी फॉलो करी, तब से मैंने देखा कि मतलब इस तरीके की तो चीज नहीं है जितना मीडिया में आ रही हैं चीजें. और तो इनफैक्ट नॉट जस्ट हिम, विराट कोहली इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. आज जो उनको इतनी वाहवाही मिल रही है, उनके और अनुष्का शर्मा के प्यार को इतनी मिसाल बोली जा रही है. आई क्लियरली रिमेम्बर एक टाइम पे जब वो फील्ड में he was not performing well. well. She was questioned in the stands. Exactly. And people were giving them tags
एंड different उनको tags, एरोगेंट कहा जाता था एक तरह से, जब वो मतलब फील्ड पे aggression दिखाते थे. अग्रेशन दिखा रहे हैं, तो ऐसे में इट्स लाइक जनता का ओपिनियन ना चेंज होना इट्स लाइक बहुत इजी है, आप बस अपनी परफॉर्मेंस में लगे रहो. And don't you dare to think कि we are discussing just a celebrity. You know, we all are celebrities in our lives, and similarly, most of us around here are that janta only who is criticizing us, giving us different tags, downgrading us day by day, by treating us, you know, in various ways. And I think we have to just learn from that thing कि यार हमें कितना इफेक्ट होना है और हम कितना इसे यू नो एक पुश ले सकते हैं, पॉजिटिव फोर्स ले सकते हैं उठने के लिए. You know, we have also our World Cup, which we have to win. Our dreams, you know, our goals, which we have planned for ourselves, a family, or you know, anything which you have planned for your life. So, अगर आपको अपना वर्ल्ड कप उठाना है, तो अभी जो आपका ये टेम्पररी IPL चल रहा है, इससे बाहर निकलिए और forget your performances, forget views around you. Just focus on yourself. कि यार अभी what I can look up to, अभी मुझे क्या दिख रहा है तुरंत शॉर्ट टर्म में, और फटाफट से अपने आप को एक पुश दीजिए, क्योंकि यू नो और कोई नहीं आने वाला है पुश देने आपको. कोई नहीं आएगा जो आपको बोलेगा कि यार यू कैन डू वेल, यू कैन गो मच अहेड. आपको याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं यार अभी मैं टेम्परेरी हूँ, आई कैन गो मच अहेड. द फैक्ट दैट आप अपने आप को ऐसा पुश दें कि जितना आप नीचे गिरे हैं उतना ही जोर से आप ऊपर उठे. द ओनली वन लाइन आई कैन से इज कि योर कमबैक शुड बी ग्रेटर देन योर सेटबैक. एक द पावर ऑफ रेजिलियंस हमें सिखाया जाता है कि वी शुड बी रेजिलियंट. हम कितना भी चाहे नीचे गिर जाएं, हमें ऊपर उठना दोबारा से आना चाहिए. जैसे हमने बात करी हार्दिक पांड्या की, विराट कोहली की, हमने बात करी ऋषभ पंत की, अ पर्सन जो अपने डेथ बेड पे थे और उसके बाद उन्होंने खेलना शुरू करा. एंड जैसे अगर हम बात करें, जो कल हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें एक इंसान अगर 36 की एज में स्टार्ट कर सकता है, तो आप को क्या ऐसी चीज रोक रही है दोबारा से अपनी वो चीज स्टार्ट करने से? क्या लोगों का जजमेंट आपको रोक रहा है? क्या कुछ आपका पास्ट एक्सपीरियंस है जो आपको रोक रहा है? क्या आपके कुछ ऐसे प्री डिफाइंड नोशंस हैं जो आपको रोक रहे हैं? और इन सबको ओवरकम करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ हद तक ठीक है, सो गाइस आई विल टेल यू सिंपली, बी एन एक्सेप्शन. अगर ऐसा भी है तो भी एक्सेप्शन बनो, क्योंकि एक्सेप्शंस होती हैं केमिस्ट्री की तरह, हमारी जिंदगी में एक्सेप्शन होती हैं और हमें बनानी पड़ती हैं. और क्रिकेट को पता है, थोड़ा सा मैं फिर से बैकट्रैक करूंगा और मैं फिर से एग्जांपल दूंगा रोहित शर्मा. यू नो, जनरली ट्रेंड है कि अगर हम कैप्टेंसी की, अगर हम हैंडलिंग की बात करें, तो सपोज करो एक अभी जो 30 एज्ड पर्सन है, अगर उसने अभी कैप्टेंसी छोड़ी है, तो नेक्स्ट पर्सन शुड बी यू नो डेफिनेटली यंगर देन हिम, यार नाउ ही विल हैंड इट ओवर. बट नहीं, विराट कोहली वाज द कैप्टन. Rohit Sharma, being the most humble guy in the team, you know, patient, doesn't worry about his position at all. Yeah. He simply waited and gave his performances. And you know, the whole world, the country, the selectors, the team management has seen everything कि यार what this person holds. और उसके बाद automatically Virat Kohli, after he left his captaincy, he was handed the captaincy. And today you can see, after continuously losing 3 ICC tournaments, you know, first the Test Championship, the T20 World Cup, and the last year World Cup. Last year. It was, you know, really heartbreaking for all the Indian fans, for us, for him, for the team as well. But even after that, you know, the person continued to lead the team, to show them the right path, and finally, on the final day, 29th of June, I was, you know, really, all of us were crying. यार हर एक बंदा जो वो पोडियम पर ट्रॉफी उठा रहा था, उनकी अपनी अपनी स्टोरीज थी. हर एक इंसान की अपनी स्टोरीज थी. और इसी तरीके से यू नो हमारी लाइफ में भी, मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, इफ यू अलाउ मी, इफ दे अलाउ मी. यार इट्स नॉट लाइक कि ट्रॉफी सिर्फ आप अपने लिए उठा रहे हो. यू नो, समटाइम्स होता क्या है ना, यू आर जस्ट अ मीडियम फॉर द अनदर पर्सन टू गेट हिज सक्सेस. आप उन करोड़ लोगों के लिए उठा रहे हो जो आपको बैठकर अपने घरों से देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी की एक स्टोरी है कि किस तरह से वो इंस्पिरेशन लेना चाहता है. आपको पता नहीं है कि जो अगली सुबह थी वो किस तरह की रही होगी उस हर एक भारतीय के लिए. कितने लोग जो रूम में लास्ट नाइट शायद अंधेरे में सो रहे होंगे, ये मैच देखने के बाद अगले दिन उन्होंने स्टार्ट करा होगा फिर से अपना काम. एक लाइट जला ली होगी, यू नो, एक इंटरनल बल्ब उनका जल गया होगा. So try to be that team, that person, that Rohit Sharma, that Hardik Pandya, for the people around you. For the people around you, try to be an inspiration.
just try to come out of the things which are influencing you negatively. ओके मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये मोटिवेट होने की और ये अच्छी बातें जो करते हैं उसके अलावा जो मतलब ये कमेंट्री, ये जो एक एक फैक्ट याद रखना और ये सब चीजें मतलब ऐसा रहा कि जो चीजें हम सुनती हूँ, मैं जब इससे सुनती हूँ आई फील रियली इंस्पायर्ड कि मतलब इतना अच्छे से कोई क्रिकेट को कैसे मतलब जान सकता है. सो डू यू हैव मतलब डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? Honestly speaking, it's not only about me. As I already mentioned कि यार हमारे देश में ना हर एक मिडिल क्लास बच्चा जब बचपन से स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले टीवी पे क्रिकेट ही देखना स्टार्ट करता है. एंड समहाउ ही स्टार्टेड प्लेइंग गली क्रिकेट. ही मूव्स ऑन टू हिज स्कूल, plays some shots there, and after that life shoots him to some another stand. And now we all are watching the cricket from that stand. Yeah, in the corner of my heart I still have a dream कि यार कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा खेल पाऊँ, थोड़ा खेल पाता. ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ट्राई किया and I failed. In fact, I was not given that environment. I didn't give it to myself कि यार मैं क्रिकेट खेलूं, क्योंकि ट्रेंड के अनुसार I continued and I'm here. So anyways यार each one of us have our own story and I think it's okay. क्या पता कब आपको मौका मिल जाए खेलने का. खेलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज से इंस्पायर होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड यू हैव गॉट योर सेंस, योर शेयर ऑफ मोटिवेशन. एग्जैक्टली. और उसके बाद मैं यही बोलूंगा कि यार आप लोग ट्राई करो कि यार अगर आज आप शाम को परेशान होकर सोए हो तो कल सुबह ना आप खुश होकर ही उठो, क्योंकि द थिंग इज यार जो आप अगले दिन कैरी करोगे स्टार्टिंग से वो इन्फ्लुएंस करेगी आपकी आज की शाम कैसी होगी. तो हर दिन आपके पास फिर से एक चांस होता है उठने का और स्टार्ट करने का. So just forget about the setback that you have had, forget about the past experience, जो भी गलत हुआ, learn from it, keep in mind कि क्या गलत हो सकता है, मगर start with a new morning, एक नए तरीके से शुरुआत करें and आपकी जो comeback की story है वो पूरी दुनिया में गाई जाएगी. And yeah, I think for the people around us, due to which I think we are in that podium ki yaar, pointed podium ki tu ye tu wo, you are not doing that. To those people I would like to say yaar ki yaar, if you can't help him grow, don't push him downwards. No. Exactly. And somehow for somebody in the world you might be also that person. You yourself might be that person who is pushing you down. Yes. तो अपने साथ आप वैसा मत होने दीजिए एंड एक नई शुरुआत करिए. एंड वी होप यू ऑल द बेस्ट, होप अस द बेस्ट कि जो ये हमने नई शुरुआत करी है वो आगे तक हम कंटिन्यू कर सकें, आपको एंटरटेन कर सकें, आपके लिए नए टॉपिक्स ला सकें डिस्कशन के लिए. We can become an important part of your life. We can be some sort of a cricketer in your life. Yeah. Cricketer, actor, politician, जो भी मतलब influence. In any form you can get inspiration from us or from somebody. So try to learn from us, from everyone around you, and just come up यार. All the best. हमको और टॉपिक्स के बारे में जरूर बताएं. Let us know in the comment section और लाइक शेयर एंड कमेंट. हमारा पेज, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. फॉर्मेलिटीज है यार, ये हमको याद नहीं रहती है. We'll be back with some more discussions, some more topics. So goodbye. Thank you.